بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جمعہ ہے اور امام زمانہ کا دن ہے۔ میں ایک یا دو چیزیں آج دعا کے سلسلے میں آپ کو بتا دوں جو میں نے خود کی ہے۔ بیماری میں، پریشانی میں، تکلیف میں، مصیبتوں میں آپ کو یہ کرنا ہے۔ وہ میں بولوں گا تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ ہر بیماری کے لیے ہے۔ یہ آیت تو آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، کبھی بھی پڑھو، روزانہ پڑھو۔ میں بار بار بول رہا کم از کم 5 مرتبہ یہ آیت پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ کون ہے جو مضطر کی آواز کو سنتا ہے؟ اور آج کے دور کا مضطر میرا امام زمانہ ہے۔ دوسری چیز جو پریشانیوں سے، بیماریوں سے بچنے کے لیے، اس وقت پوری دنیا مجھے اہل بیت چینل کے اوپر سن رہی، میں سب سے یہ کہہ رہا کہ آپ ایک تسبیح جو آپ روز نماز کے لیے پڑھیں۔ اب میں تسبیح بولوں، تسبیح مظلوم بی بی زہرا جو آپ 34 ٹائمز اللہ اکبر، 33 الحمدللہ اور 33 سبحان اللہ۔ میں ہر واجب نماز کے بعد 2 مرتبہ پڑھوں۔ میں آج اپنا ایک راز بتا رہا، اپنا ایک نسخہ بتا رہا کہ کیسے انسان بیماریوں سے، پریشانیوں سے بچتا ہے۔ ایک تسبیح تو لازم پڑھنا ہے قبولیت نماز کے لیے، وہ یہ ہر انسان پڑھتا، ہر انسان تسبیح پڑھ۔ اب میں آپ کو دوسری چیز دے رہا ہوں، آپ اس کو 10 مرتبہ پڑھیں، 9 مرتبہ پڑھیں، 18 مرتبہ، یہ لمبا چوڑا عمل نہیں، یہ بہت چھوٹا سا عمل۔ تسبیح مظلوم بی بی زہرا کتنی دیر ہوتی؟ ہارڈلی 2 to 3 منٹس، لیکن آرام آرام سے پڑھیں، بالکل آرام آرام سے۔ 34 ٹائمز اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ یہ اللہ کے یہ 3 نام، یہ تم کو ہر چیز کے لیے نجات دے، ہر پریشانی کے لیے۔ تسبیح مظلوم بی بی زہرا، ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر۔ میں آج آپ کو بتاؤں کہ نماز کے بعد، واجب نماز کے بعد، دوسری نمازوں کے بعد نہیں پڑھتا ہوں، لیکن آپ دوسری نمازوں کے بعد ایک دفعہ پڑھتا ہوں، لیکن 2 دفعہ نہیں پڑھتا۔ بیماری سے بچنے، یہ آزمائی ہوئی چیز، ہمارے علماء یہ آزمائی ہوئی چیز کہ یہ تسبیح مظلوم شہزادی تمہارے جسم میں، تمہارے پریشانیوں کے لیے، تمہاری بیماری کے لیے، کوئی کیسا بھی پیشنٹ، کیسا بھی، اور میں نے دنیا میں جہاں بتائی لوگوں نے اس پہ عمل کیا اور اس کو شفا ہو۔ میں خود کر رہا ہوں، اب اس بیماری میں بھی میں نے کیا۔ نماز کے بعد، واجب نماز کے بعد آپ ایک تسبیح اس نیت سے پڑھیں کہ یہ قبولیت نماز ہو، اس لیے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ میری دادی کی تسبیح ضرور پڑھو، اس لیے پڑھو کہ وہ تمہاری نماز کی قبولیت ہو۔ بہت اچھا۔ دوسری چیز، بیماری اگر کوئی اگر بیماری نہیں بھی ہے یا دوسروں کے لیے پڑھ، یہ بھی بہت ثواب ہے کہ آپ کی نگاہ میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے خاندان میں، آپ کی فیملی ممبرس میں اگر کوئی بیمار تو آپ تسبیح مظلوم بی بی زہرا پڑھ، آپ دعا کریں کہ پروردگار اس تسبیح کا واسطہ، میری مظلوم شہزادی کی تسبیح کا واسطہ اس بیمار کو شفا دے، اس بیمار کو شفا، اس بیمار، اور جو بیماریاں ہمارے جسم میں اس کا نکال۔ اس تسبیح کی برکت سے لوگوں کی حاجات، لوگوں کو بیماریاں شفا ہوتی اور مکمل شفا۔ آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں، 8 days کے اندر میجر سرجری تھی، اسپائن کی میجر سرجری، ڈاکٹرز نے 45 days کہا، اینڈ وی آر سیئنگ ناؤ 28 اگست کو میری سرجری ہوئی اور لاسٹ تھرسڈے سٹیچز اوپن ہوئے اور 8 دن کے اندر میں ممبر پہ آ گیا۔ یہ شکر ہے پروردگار، شہزادی کونین کا شکر کہ انہوں نے ان کو اپنے بچے کا ذکر کروانا، اپنی اولاد کا ذکر کروانا، جس سے چاہے بھی کرنا، کون روک سکتا ہے؟ شہزادی کونین مالک۔ تو تسبیح مظلوم بی بی زہرا روز اپنی واجب نماز میں، جو بھی سن رہا مجھے پوری دنیا میں سے، واجب نماز کے بعد تسبیح شہزادی کونین اور ختم ہو، آپ کچھ نہیں کریں۔ یہ اللہ کی مدح، اور شہزادی سے بہتر کون جانتا کہ اللہ کی مدح، اللہ کی عبادت کیسے کی، کیسے کی۔
अच्छा, ये तस्वीर के बारे में और ये भी, बीमारियों से इंसान बचता है, रिस्क का प्रॉब्लम है, किसी रिस्क की तलाश में जा रहा, जॉब में खुदा ना खास्ता अगर जॉब का प्रॉब्लम, बिजनेस का प्रॉब्लम, इवन अगर ये तस्वीर रोज तुम अपने ऑफिस में बैठ के, वंस व्हेन यू गो टू योर ऑफिस, ऑफिस में बैठ के जाके टेबल पे बैठ के अगर तुम ये तस्वीर पढ़ोगे, कितनी देर होती, 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 4 मिनट्स, तस्वीर पढ़ के यू स्टार्ट योर डे। बिजनेस वाले तस्वीर पढ़ो, यू स्टार्ट योर डे। स्टार्ट योर डे विद तस्बीह मजलूम बीबी जहरा। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। स्टार्ट योर डे विद द तस्बीह ऑफ मजलूम बीबी जहरा। उसके बाद ऑफिस जा रहे, ऑफिस में, कार में है, ट्यूब में है, कहीं भी आप बीबी की तस्वीर पढ़ो, तस्वीर पढ़ के हाथों में बोलो, परवरदिगार तुझे इस तस्बीह शहजादी कौनैन का वास्ता, मादर हसनैन का वास्ता, इससे बड़ा कोई वास्ता है? बेहक फात है व अबीहा व बालुआ व, इससे बड़ा कोई वास्ता नहीं है, सब जानते हैं। तो ये तस्वीर पढ़ के आप अपना डे स्टार्ट करें। अच्छा, ये तस्वीर जब तक आप जिंदा हैं आप पढ़ते हैं, इसका सवाब बेइंतहा सवाब, सवाब कोई बोल ही नहीं सकता कि आपको इसका रिवॉर्ड क्या मिले। इसलिए कि तस्बीह का सवाब वही देगा जिसने इस तस्बीह को बताया। ये तस्बीह को बताया किसने? शहजादे कौनैन ने। पहली मर्तबा इस अंदाज से पढ़ा किसने? शहजादे कौनैन ने। अल्लाह अकबर, आप 100 मर्तबा पढ़ो, सवाब बहुत है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप 200 मर्तबा पढ़ो, बहुत सवाब है। ये अल्लाह का नाम है, मदह परवरदिगार है। और ये अल्लाह का नाम जितने आप अल्लाह के नाम लेते रहेंगे, इसलिए कि दुआए कुमैल में, दुआए कुमैल आज आपने पढ़ी है, दुआए कुमैल के एंड में इमाम अली अलैहिस्सलाम, मेरा मौला ये कहता, जिक्र शिफा, अल्लाह तेरा जिक्र शिफा है, जितना तुम उसका जिक्र करोगे उतना सवाब है। लेकिन इस अंदाज से, अल्लाह अकबर, आप 100 मर्तबा पढ़ो, अजर बहुत है। लेकिन इस अंदाज से, जिस अंदाज से मेरी बीबी ने बताया, अगर कोई उस अंदाज से पढ़े तो वो असर होगा जो शहजादी कौनैन की तस्बीह का असर है। 34 टाइम्स अल्लाह अकबर, 34 ही पढ़ना है, 35 नहीं पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह 33 पढ़ना है, सुभान अल्लाह 33 ही पढ़ना है। ये इस अंदाज से जो बता, इससे कि मादर हसनैन से बेहतर कौन था? अल्लाह की तस्बीह करने वाला। और शहजादी कौनैन से बेहतर कौन है जो ये बताए कि अल्लाह के कौन से नाम को किस अंदाज से पढ़ा जाए। एक सलवा पढ़ ले, मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो कोशिश ये करो कि शहजादी की तस्वीर पढ़ते रहो, इसी अंदाज से पढ़ो, पढ़ के दुनिया को बताओ कि तस्बीह जहरा का मकसद क्या है, तस्बीह जहरा को किस तरह से पढ़ने से सवाब मिलता। और तो बीवी की तस्बीह सिर्फ ये नहीं है कि आप जब यहां रहे बीमार तो पढ़, ये तो दुनिया वालों की। आखिरत के लिए जब भी आप खबरस्तान जाओ, इसलिए कि ये मजलिस ईसाले सवाब की मजलिस है और आज शब जुमा है। अब आपके पास भी रात हो गई, हमारे पास भी रात हो गई। आप कल जा रहे, वीकेंड पे जाएंगे, परसों जाएंगे, जब भी वेन एवर यू गो टू ग्रेवयार्ड, वहां जाके आप कई चीजें पढ़ सकते। वो सलाम पढ़ सकते, सूरह यासीन पढ़ो, फातिहा पढ़ो, सूरह रहमान पढ़ो, सूरह मुल्क पढ़ो, हिसाब पढ़ो, जियारत पढ़ो। सारी चीजों के बाद मैं किसी चीज को रोकना नहीं, मरहुमीन के लिए, इसलिए ईसा ने साहब की मजलिस, मैं मरहुमीन के लिए पढ़ो, हर चीज पढ़ो। लेकिन उसके बाद तस्बीह शहजादी कौनैन भी अपने बाप की, माँ की, भाई की, बहन की याद में बैठ के जरूर। आप बोलेंगे कि तस्बीह से कब्रस्तान से क्या मतलब? तस्बीह पढ़ने से कब्रस्तान के मुर्दों को क्या फायदा? सवाल ये जहन में आ सकता कि तस्बीह शहजादी कौनैन ठीक है, नमाज को कबूल करा रही है, आपको शिफा दे रही है, आपके रिस्क के दरवाजे खोल रहे हैं, आपकी परेशानियां दूर हो रही है, ये सब आप समझ, बेशक इन सारी चीजों के साथ अगर कोई जाके तस्बीह शहजादी कौनैन, बाप की, माँ की, भाई बहन, या किसी ग्रेव यार्ड में आप जाए, लंदन के, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, किसी भी सेमेट्री में आप जाए, जाकर तस्बीह शहजादी कौनैन इसी तरह से
34 टाइम्स अल्लाह अकबर, 33 अल्हम्दुलिल्लाह, 33 सुबह। पहले 5 सलवात पढ़ लेना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल करें। फिर बीवी की तस्वीर, तस्वीर पढ़ने के अब क्या करना, अब असल चीज सुन कि कैसे तुमको दुआ करना है। पूरे कब्रिस्तान, कहीं का कब्रिस्तान, कहीं की लहर, मुर्दे को नीचे चाहिए क्या? क्या चीज चाहिए? नीचे है क्या? ग्रेव के अंदर क्या है? पहली चीज जो ग्रेव के अंदर है वो है वहशत। वहशत किस चीज की वहशत है? तन्हाई की वहशत, अंधेरे की वहशत, डार्कनेस की वहशत, गर्मी की वहशत और परेशानियों की वहशत। इसीलिए आप पहली रात की जो नमाज पढ़ते हैं वो नमाज है वहशत है, खबर पढ़ते हैं। तो आप खुद बोलो कि ये वहशत की नमाज है। वहशत के माने एक फियर, एक डर, एक खौफ। हर आदमी पढ़ता कि पहली रात को बाप को दफन करके आके हम 2 रकात नमाज पढ़ते कि नमाज वहशत है, खबर है, अव्वल शक की नमाज। क्यों क्यों पढ़ते हम ये नमाज? उसकी वहशत भी, अंधेरे की वहशत। नीचे रोशनी नहीं, नीचे कोई रोशनी नहीं। इसीलिए ये रिवायतों में है कि हर मोमिन की लहर, 20 गौर से सुनो, हर मोमिन की लहर रोजाना पुकार के कहती है कि ऐ मेरे दामन में आने वाले, ये वहशत का घर, यहाँ कोई चिराग नहीं, कोई लाइट नहीं है, तुम अपने साथ चिराग को लेकर आना, ये जुल्मात का घर। आप सारी किताबों में मिलेगा कि हर मोमिन की लहर रोजाना पुकार के मोमिन को कहते हैं। हम ठीक है, हमारे कानों पे पर्दे हैं, हमारे कानों में आवाज नहीं आ रही, इसलिए नहीं आ रही कि हम, हमारे गुनाहों के पर्दे हमारे कानों में, गीबतें जो हमने की, जो म्यूजिक हमने सुनी, जो बैक बाइटिंग हमने की, वो सारे जो गुनाह हमारे, जो डेली म्यूजिक के साथ, इन चीजों के साथ, बहुतान के साथ, एलिगेशंस बैठ के जो सुन रहे, लोगों के बारे में हम जो बात करें, ये सारी चीजें जो हमारे कानों के ऊपर पर्दे आ गए कि वहां की आवाज हमारे कानों में नहीं आ रही है, मौला का इशारा है, मौला की हदीस है कि वो पुकार के कह रही कि ये जुल्मात का घर है, जुल्मात का घर है, ये अंधेरों का घर है, चिराग यहाँ नहीं है, तुम अपने साथ आते आते चिराग लेकर आओ। वो मैयत को कह रही है, साहिब लहर को कहती है लहर। तो उस वक्त नीचे चाहिए क्या? सबसे बड़ी चीज, हर मरने वाले को नीचे क्या चाहिए? उसकी वहशत खत्म हो, उसका अंधेरा, अंधेरा खत्म हो जाए, वो डार्कनेस खत्म। उस डार्कनेस को खत्म करने के लिए, उस डार्कनेस को खत्म करने के लिए ये तस्बीह। आप बोलेंगे तस्बीह से और डार्कनेस कैसे खत्म? आप सुनो, शहजादी कौनैन के कई नाम, बीबी का नाम ताहिरा है, बीबी का नाम फातिमा है, बीबी का नाम सैयदा है, बीबी का नाम सिद्दीका है, बीबी का नाम मर्जिया है। इन सारे नामों की एक तस्वीर, फातिमा की एक तस्वीर, ताहिरा की एक तस्वीर, सिद्दीका की एक तस्वीर, मर्जिया की एक तस्वीर, हर बीवी के नाम की एक तस्वीर। उसी तरह बीवी का एक नाम है जहरा। जहरा बड़ा मशहूर नाम है शहजादी कौनैन का। अलखाब जो है, अलखाब में बीबी का ये लक़ब है, बीबी को जहरा का। जहरा के माने क्या है? नूर के। जहरा के माने लाइट के। जहरा के माने ब्राइटनेस के। जहरा के माने रोशनी के। अब नीचे मुर्दों को जो चाहिए, अगर आपने तस्बीह बीबी पढ़ के हाथों को उठा के अल्लाह की बारगाह में ये वास्ता दिया बीबी का ये नाम का कि आप प्लीज गौर से सुनो मेरे जुमले कि परवरदिगार तुझे तस्बीह मजलूम बीबी जहरा का वास्ता, तुझे तस्बीह मजलूम बीबी जहरा का वास्ता। ये जो साहिब लहद है, ये जिसकी ग्रेव है, या ये जो कब्रिस्तान है, या पूरी दुनिया में जहां जहां मौला के चाहने वाले दफन है, परवरदिगार उनकी खबरों में, उनकी ग्रेव्स में तू रोशनी को शहजादी कौनैन के सदक़े में, इस तस्बीह के सदक़े में, बीबी के इस नाम के सदक़े में तू वहां पे नूर पैदा कर दे। तो दोस्तों, एक तस्बीह मजलूम बीबी जहरा का ये नाम लेके अगर कोई दुआ करे तो सारा कब्रिस्तान रोशन हो जाए। एक चीज याद रखो, अल्लाह रहमतों को नाजिल करने के लिए बहाने ढूंढता है, और वो बहाने ढूंढता कि कहां से और किस अंदाज से मैं रहमत को नाजिल करूं। आप सोचो,
बीबी का वास्ता देकर अगर कोई अपने मरहुमीन की मगफिरत की दुआ करे तो आप समझ रहे कि उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। उसका वास्ता ये सबसे बड़ा वास्ता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मादर हुसैन से बड़ा कोई वास्ता नहीं है अल्लाह की बारगाह में। अगर शहजादी कौनैन का कोई वास्ता देके उसकी बारगाह में दुआ करे, अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दा व यक्शफु सू, उसके बाद आप बोलो तुझे तस्बीह मजलूम और मजलूम जरूर बोलना, इसलिए कि बीवी के नाम के साथ लफ्ज मजलूम जरूर रखो, इसलिए कि इनसे बड़ी मजलूमा कोई नहीं थी। तस्बीह मजलूम बीवी जहरा का वास्ता, अल्लाह इनकी लहर में तो अपनी रोशनी को पैदा कर दे, इनकी मगफिरत फरमा। फिर देख कि परवरदिगार कैसे मरहुमीन के दर्जात को बुलंद करता। एक सलवा पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद।